20 Grand Slams, out of which 13 are French Open. His age is 34 and he is still world number 2 according to the ATP rankings. He has 2 gold medals for Spain and he is also known as the undisputed king of the clay court. Yes, I think you all have guessed it right. I am talking about none other than Rafael Nadal. So here we are in the 7th episode of Chat with Atharva Value Adding Podcast, and we talk about Rafael Nadal, the undisputed king of clay court, and all of his achievements. And my guest for today's podcast is Advocate Ajit Patkhetkar. Nice to have you back. I want to dive straight into the topic. Rafael Nadal has 13 Grand Slams on his name, which are all on clay court, which is also known as French Open tournament. He started when he was 19. He won his first French Open in 2005 when he was just 19. And in 2020 also, he is still the undisputed champion when it comes to clay court. Such consistency is really admirable. What do you think about this? तो राफेल नडाल जो है उसका जो परफॉर्मेंस राफेल नडाल का जो अपन देखेंगे तो उसका जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे फ्रेंच ओपन में तो वो आपको 2005 से लेके 2020 तक इट्स ऑलवेज इम्प्रूविंग. अभी रिसेंट जो 2020 का जो फ्रेंच ओपन का फाइनल हुआ जोकोविच और नडाल के बीच में तो वो 3 सेटर मैच हुआ और कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय नडाल. So if you compare his play with 2005, he's still in the same way. He's playing in the same way even at the age of 34. And that in fact is a big achievement, and therefore he is called as one of the greatest players on the tennis. I feel that राफेल नडाल की सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन उनकी एथलेटिज्म और फिटनेस भी है. Although he was grappled from injuries time to time, he fought back and he maintained his consistency on all types of courts, because we all know tennis is such a demanding sport. It requires very high physical exposure. Even after that, having injuries, and after that coming back to the game and still winning it and still being on top of the game all the time for 15 consecutive years, it is a very big achievement. वो तो है. और दूसरा एक आप और उनके खेल से आप एक और अंदाजा लगा सकते हो कि जब वो कोर्ट में होते हैं तो उनके जो एक एंथुजियास्टिक अप्रोच उनका रहता है, वो एंथुजियास्टिक अप्रोच जो है वो पूरे स्टेडियम में जो उनका जो पूरा क्राउड है वो उनके पीछे रहता है. जब भी कोई अच्छा वो शॉट मारते हैं तो एक राफा 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 करके पूरा स्टेडियम उनका पूरा जो उनको सपोर्ट करता है. तो उसके लिए वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है. बहुत एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से कोई भी खेल खेलते हैं और उसी तरह से उन्होंने टेनिस को बहुत कुछ दिया भी है. एक्चुअली आई एम सेइंग दैट ही इज द एपिटोम ऑफ एंथुसियाज्म, पॉजिटिविटी. तो एक पॉजिटिविटी भी आप अगर कोई भी राफेल नडाल का मैच देखिए आपको ऐसा लगता है एक पॉजिटिविटी है पूरी, एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है कोर्ट के ऊपर. तो ये जो उनका जो इन्होंने जो इतने 15 साल के जो लॉन्ग जो उनका करियर है टेनिस में, तो ये भी एक बहुत बड़ी खासियत मुझे ध्यान में आती है कि इलेक्ट्रीफाइंग प्ले और एंथुसियाज्म, एंड प्लस इफ यू सी हिज प्ले यू गेट दैट पॉजिटिविटी. सो अभी 2020 में फ्रेंच ओपन जो हुआ कोविड-19 सिचुएशन में, ही वन ओवर नोवाक जोकोविच and he defeated him in straight 3 sets. He is 34. He was coming back from an injury, but still he performed fantastically to win his 13th title, which allowed him to be the most number of French Open title winner. So I know that you followed that match very carefully, and being a tennis enthusiast, what do you feel about that match? That match really is a one-sided match. It was completely dominated by Rafa. But because everybody was expecting that Djokovic will give a tough fight to Rafael Nadal. But even in an award ceremony, even Djokovic has admitted that I always got a different Nadal on the French Open. So exactly that precisely it. But अभी जो उन्होंने नया रिकॉर्ड एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि महान रॉजर फेडरर के साथ अब वो इक्वल कर गए, क्योंकि ये जो 2020 का जो टाइटल था वो उनका 20वां ग्रैंड स्लैम था
और देखिए कैसा ये एक संयोग देखिए कि जो फाइनल जो जीता नडाल ने, वो 100वीं मैच थी उनकी फ्रेंच ओपन की, और वो 100वीं विन थी उनकी। सो 100 अगेंस्ट 2, दैट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड ऑफ रफा ऑन इन द फ्रेंच ओपन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ्रेंच ओपन में ही रफा ने अच्छा खेल खेला है। मेरे हिसाब से अमेरिकन ओपन के जो 4 टाइटल उन्होंने जीते हैं, वो इस बात की गवाह देते हैं कि दूसरे भी कोर्ट्स में वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं जितना फ्रेंच ओपन में। हाँ, ग्रास कोर्ट में जो है उनके जो उतने जो विनिंग टाइटल नहीं है। अगर आप उनका ग्राफ देखेंगे तो विंबलडन के उनके पास सिर्फ 2 ही टाइटल है। लेकिन ग्रास कोर्ट में राफा ने, नडाल ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है उनके करियर में जितना कि उन्होंने क्ले कोर्ट पे किया है, और इसीलिए उनको पॉपुलरली नोज एज द किंग ऑफ क्ले, या क्ले के बादशाह के रूप में उनको जाना जाता है। और टेनिस की मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगती है. This is something which is very different about tennis, that tennis people have very wonderful mutual respect for their counterparts. We often talk about banters or sledging in football or cricket, but tennis is such an individual sport. Still, it does not have that kind of sledging or banter or disrespect for each other. Always tennis has mutual respect for each other, which is also seen in the top players too. You are absolutely correct. अगर आज के एरा में भी आप जितने भी तीनों अगर कॉम्पिटिटिव ये जो प्लेयर है, तीनों जो टॉप के प्लेयर है, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल, तो ये जो तीनों है, तो ये इनका जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हर बार दिखाई देता है। बहुत से टेनिस के बारे में कुछ कंस्ट्रक्टिव जो कोई प्रोग्राम्स रहते हैं या टेनिस को प्रमोट करने के लिए, व्हेनेवर दे कम टुगेदर, इट शोज दैट दे आर हैविंग अ ग्रेट म्यूचुअल रिस्पेक्ट अबाउट ईच अदर। कोई भी आप देखिए, इवन आपने ये जो फ्रेंच ओपन के फाइनल के बाद का जो सेरेमनी था, उसमें जिस तरह से नोवाक जोकोविच ने नडाल के बारे में बोला है या नडाल ने उनके बारे में बोला है, इट शोज दैट they are having a great mutual respect about each other. And इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि मैं हरदम बोलता हूं कि नडाल जो है is the epitome of sportsman spirit, as well as he is the epitome of positivity and electrifying play of tennis on the court. I want to touch to a very different aspect of this. हम देखते हैं अक्सर the tennis people have lot of individual sport. They play in individual tournaments where they are not playing for their country specifically. So in Olympics, when these people play, it does not feel like they are playing for themselves or playing for the medal. Instead, it feels that वो लोग अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, और शायद कभी कभी टीम के लिए वो कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स भी कर रहे हैं अपने गेम में. फॉर एग्जाम्पल, रॉजर फेडरर इज नॉट अ डबल्स प्लेयर, बट स्टिल ही पेयर्स हिमसेल्फ विद हिज फेलो टीममेट टू विन द मेडल फॉर हिज कंट्री. आपने ये बात बहुत अच्छी कही है, क्योंकि रॉजर फेडरर ने जो है वो डेविस कप में वो जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्री को, तो कई बार वो उन्होंने डबल्स का, आपने सही जिक्र किया कि डबल्स का उनको अनुभव नहीं है, बट स्टिल फॉर द कंट्री दे हैव प्लेड इट. आप उसी तरह से राफेल नडाल के बारे में भी बोल सकते हो. स्पेन के लिए उन्होंने डेविस कप के लिए बहुत से टूर्नामेंट्स खेलते हैं, कई बार वो एडजस्ट भी कर लेते हैं उनके प्रोफेशनल जो टूर्नामेंट्स है उसको, और उतना ही महत्व देते हैं डेविस कप को या ओलंपिक की जो स्पर्धाएं होती है या जहां भी उनको देश का रिप्रेजेंटेशन करने को मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू मी दे आर प्रोफेशनल प्लेयर एज वेल एज व्हेन इट नीडेड दे ऑल्सो प्ले फॉर देयर कंट्री. और अपने भारत में भी ऐसे आपको कई उदाहरण मिलेंगे, जैसे आप अपने यहाँ पे भी रमेश कृष्णन थे या लिएंडर पेस थे, रामनाथन कृष्णन थे, विजय अमृतराज थे. इन लोगों ने भी डेविस कप के लिए जब वो खेलते थे अपने देश के लिए, तो उन्होंने भी कई बार वही प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स को बाजू में रखते हुए अपने देश को पहले उन्होंने ये दिया. और मुझे याद है लिएंडर पेस ने तो, उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि डेविस कप में जो है सबसे ज्यादा जीत जो है, मोस्ट नंबर ऑफ विनिंग मैचेस
दैट रिकॉर्ड स्टैंड इन द नेम ऑफ लिएंडर पेस। तो ऐसे जो है ये लोग जो है वो अपने देश के लिए जब भी कोई समय आता है तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा कहा कि ये जो इतने बड़े बड़े जो खिलाड़ी है तो जब भी देश के लिए खेलने का मौका आता है तो वो अपने जो प्रोफेशनल जो उनके जो मैचेस या टूर्नामेंट्स रहते हैं दे आर मेकिंग एडजस्टमेंट टुवर्ड्स दैट। Of course. So, coming back again to Rafael Nadal, what do you think is the future of him? Because he's now 34 years old, but he's still in full force, still winning the matches, still being able to cope up with the new young lads. What do you think the future stands for him, and will he play for the next 2 to 3 years? मेरा जो मैंने अपने बताया कि मुझे टेनिस के बारे में बहुत शौक है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद ही कहा है कि वो तो रिटायरमेंट का अभी तो उनका कोई विचार है नहीं। तो मुझे तो लगता है वो 3-4 साल तो और भी डोमिनेट कर सकते हैं पूरे टेनिस वर्ल्ड को। और नाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम। तो मेरे हिसाब से तो वो अभी तो आपने सही कहा, वो बहुत फिट है। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि 3-4 साल तो आराम से खेल पाएंगे। This is so wonderful, and on this positive note we conclude our podcast. This podcast was a really special one because we are recording it after a very long time, and also this is the most loved and most discussed about subject for me personally. So it was really a fun talking to you, and thank you very much. बात को खत्म करते हुए मुझे एक बात याद आ रही है कि मैंने अभी कहीं पढ़ा कि हम लोग जब छोटे थे 2005 में, जब किसी ने तो भी लिखा है कि 2005 में हम लोग छोटे थे तब भी राफेल नडाल जो है वो फ्रेंच ओपन जीतते थे। अब वो 15 साल बड़े भी हो गए फिर भी राफेल नडाल जो है वो फ्रेंच ओपन जीत ही रहे हैं। ये जो एक बात है इसी में राफेल नडाल की महानता हमें दिखाती है और दर्शाती है। आपने मुझे आज यहाँ पे इस पॉडकास्ट के लिए इन्वाइट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Yes, Bilkul, this was the perfect note to end the podcast. Thank you very much.